وہ ٹیکسی ڈرائیور ہر رات مجھے آفس سے گھر چھوڑنے آتا تھا۔ ایک رات جب میں تھکا ہوا کار میں بیٹھا تو اس نے کافی کا ترماس آگے بڑھایا اور نرم لہجے میں بولا، ٹھنڈ لگ جائے گی، پی لو۔ جب میں نے وہ پیا مجھے خماری چڑھ گئی۔ اس کے بعد ٹیکسی میں میرے ساتھ کئی بار۔ کہانی: ٹیکسی ڈرائیور اور خوبصورت لڑکا۔ ایک بڑے آدمی کی چھوٹی سی محبت نے میرے دل میں طوفان برپا کر دیا۔ میں نے ترماس لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی داڑھی میں سفید بالوں کی جھلک، آنکھوں کے گرد ہلکے جریوں والا چہرہ اور وہ پرسکون مسکراہٹ، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ سے بڑی عمر کے لوگوں کی پختگی، ان کے الفاظ کی گہرائی اور ان کی خاموش دیکھ بھال کو پسند کیا تھا، مگر آج پہلی بار یہ احساس دل کی دھڑکن بن کر ابھر رہا تھا۔ شکریہ انکل، میں نے آہستہ سے کہا، آج آفس میں بہت تھک گیا ہوں۔ آپ کی یہ چھوٹی سی توجہ دل کو چھو گئی۔ اس نے ریٹروائزر میں میری طرف دیکھ کر نرم آواز میں جواب دیا، بیٹا زندگی میں تھوڑی سی نگہداشت تھی تو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ تم جیسے نوجوانوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ اچھا باقی ہے۔ اس رات کے بعد ہماری بات چیت کا سلسلہ روزانہ کا حصہ بن گیا۔ وہ علی انکل کہلاتے تھے، 40 کی دہائی کے آخر میں تھے، پچھلے 15 سال سے ٹیکسی چلا رہے تھے۔ ان کی زندگی کے قصے سن کر مجھے حیرت ہوتی کہ ایک شخص اتنا صبر اور سکون کیسے رکھ سکتا ہے۔ ایک رات جب بارش تیز ہو گئی تو ٹیکسی جام میں پھنس گئی۔ میں نے کہا، انکل آج تو گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دیر کی کیا بات، احمد تمہارے ساتھ بیٹھ کر وقت گزرنا اچھا لگتا ہے۔ بتاؤ آج آفس میں کیا نیا ہوا؟ میں نے اپنی روزمرہ کی پریشانیاں، باس کی تنقید اور اکیلا پن بیان کیا تو وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر آہستہ سے بولے، احمد زندگی میں اکیلے پن کا درد بھی میں جانتا ہوں، مگر جب کوئی شخص تمہیں سمجھاتا ہے تو وہ درد ہلکا ہو جاتا ہے۔ ان کی آواز میں وہ گہرائی تھی جو میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، انکل آپ سے بات کر کے لگتا ہے جیسے کوئی پرانا دوست مل گیا ہو۔ دن گزرتے گئے، ہماری ملاقاتیں صرف سواری تک محدود نہ رہی۔ کبھی کبھی وہ مجھے آفس سے پہلے ہی فون کر لیتے، آج تھوڑی جلدی نکلنا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ایک شام جب میں کار میں بیٹھا تو انہوں نے گلاس میں تازہ ناریل کا پانی پیش کیا۔ گرمی ہے بہت، آج یہ پی لو۔ میں نے لیتے ہوئے پوچھا، انکل آپ کو میرے لیے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور آگے دیکھتے ہوئے کہا، احمد تم مجھے یاد دلاتے ہو کہ دل اب بھی دھڑک سکتا ہے۔ میری عمر میں بھی کبھی کبھی کوئی چھوٹی سی وجہ مل جاتی ہے خوش رہنے کی۔ ان کے الفاظ سن کر میرے جسم میں ایک عجیب سی گرمی پھیل گئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کی مضبوط ہاتھوں کو سٹیئرنگ پر، ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی نرمی کو، اور سوچا کہ یہ شخص مجھ سے کتنا مختلف ہے مگر پھر بھی کتنا قریب لگتا ہے۔ اور ایک رات جب ہم طویل ڈرائیو پر تھے شہر سے باہر کی طرف تو انہوں نے موسیقی چلا دی، پرانی نرم غزلیں۔ یہ گانے سن کر لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو، میں نے کہا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں بیٹا، کچھ یادیں موسیقی کے ساتھ ہی زندہ رہتی ہے۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ میں نے شرماتے ہوئے بتایا کہ مجھے پرانی باتوں والے لوگ پسند ہے، جن کی باتوں میں وزن ہو، جو سن سکے اور سمجھ سکے۔ انہوں نے ہلکے سے ہنس کر کہا، تو پھر میں خوش قسمت ہوں کہ تم مجھ جیسے بوڑھے سے بات کرتے ہو۔ انکل آپ بوڑھے نہیں، میں نے فوراً کہا، آپ میں وہ سکون ہے جو آج کل کے نوجوانوں میں کہیں نہیں ملتا۔ اس لمحے کار کے اندر خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی بول رہی تھی، ایک نئی شروعات کی، ایک نئی احساس کی۔ وقت کے ساتھ ان کی دیکھ بھال میرے لیے عادت بنتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ میرے لیے گرم سموسے لاتے، کبھی کہتے، احمد آج تھکے لگ رہے ہو، کل آرام کر لینا۔ میں بھی ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لانے لگا۔ ایک بار ان کا پسندیدہ چائے کا پیکٹ، دوسری بار ایک چھوٹی سی کتاب ان کی پسند کی شاعری کی۔ جب میں نے وہ کتاب دی تو ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تم نے یاد رکھا؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی انکل، آپ کی باتیں یاد رکھنا مجھے اچھا لگتا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس رات ہم دیر تک کار میں بیٹھے رہے، شاعری کی لائنیں پڑھتے، ایک دوسرے کی رائے سنتے۔ ان کی آواز جب شعر پڑھتے تو لگتا جیسے ہر الفاظ میرے دل تک پہنچ رہا ہو۔ ایک رات جب بارش شدید تھی اور گھر پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا، احمد آج میرے گھر چلو، چائے پی کر جاؤ۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ ان کا چھوٹا سا صاف ستھرا گھر دیکھ کر دل کو سکون ملا۔ وہ خود چائے بنانے لگے،
जबकि मैं सोफे पर बैठा उन्हें देख रहा था। वापस आकर उन्होंने मुझे कप थमा दिया और बोले, घर में खुश आमदीद, यहाँ तुम्हारा हमेशा इस्तकबाल है। मैंने कप थाम कर कहा, अंकल आपके साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा है, लगता है जैसे मैंने कोई सहारा पा लिया हो। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, एक लंबी नज़र, और फिर आहिस्ता से बोले, अहमद तुम भी मेरे लिए वही हो, कभी कभी एक शख्स की मौजूदगी ही सब कुछ बदल देती है। उस रात अली अंकल के घर से वापसी पर मेरे दिल में एक नई सी लहर उठती थी जो अब रुक नहीं रही थी। अगले चंद दिनों में हमारी मुलाकातें और भी रंगीन होती गई। एक शाम जब ऑफिस की मीटिंग लंबी हो गई तो मैं बाहर निकला तो देखा कि वो अपनी टैक्सी के बाहर खड़े मुझे इंतज़ार कर रहे हैं। हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था, जंगली फूलों का। ये तुम्हारे लिए, आज तुम्हारी प्रमोशन की खुशी है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं हैरान होकर करीब आया, मैंने गुलदस्ता लेते हुए उनकी आंखों में झांका और आहिस्ता से पूछा, अंकल आपको कैसे पता? उन्होंने हल्के से कहका लगाया, अहमद तुम्हारी खुशी मेरे चेहरे पर नजर आती है, मैंने सोचा आज कुछ अलग हो। कार में बैठकर हम शहर के पुरसुकून रास्तों की तरफ चल पड़े, जहां उन्होंने बताया कि उनकी जवानी में वो एक छोटे से गांव में से आया था। ख्वाब देखता था बड़ी जिंदगी का, मगर किस्मत ने टैक्सी की सीट पर बैठा दिया। मगर अब लगता है कि किस्मत ने मुझे तुम तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया है। उनके अल्फाज ने मेरे दिल को हिला दिया। मैंने उनका हाथ हल्के से छुआ और कहा, अंकल आपकी ये बात सुनकर लगता है मेरी तन्हाई का कोई मतलब था। रातों को हम कभी कभी पार्क में बैठ जाते, सितारों को देखते हुए उन्होंने अपनी माजी की कहानियां सुनाई। जब उनकी बीवी की वफात के बाद वो अकेले रह गए थे, कैसे उनने हिम्मत नहीं हारी। जिंदगी में खो जाना आसान है, मगर किसी को ढूंढ लेना मुश्किल। उन्होंने कहा तो मैंने जवाब दिया, मैं भी ढूंढ रहा था, शायद आप ही वो शख्स हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी। हवा में एक नई महक थी, उनकी मौजूदगी मुझे सुकून और जोश दोनों देती थी। एक दिन ऑफिस की छुट्टी पर उन्होंने मुझे पहाड़ी इलाके की सैर पर ले गए, जहां टैक्सी रोककर हम एक छोटे से ढाबे पर बैठे। गरम रोटी, दाल और उनकी बातें, सब कुछ मज़ेदार था। अहमद तुम्हारे साथ ये छोटे सफ़र मुझे याद दिलाते हैं कि खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में भी होती हैं, उन्होंने कहा। जब हम वापस लौट रहे थे, मैंने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ तो फिर आइंदा हम कब जाएंगे? उनकी आंखों में चमक आई, जब तुम कहो, मेरा दिल तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। उनके साथ वक्त गुजारते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरी पसंद बड़ी उम्र के उन लोगों की तरफ थी जो जिंदगी के सबक दे सकते हैं, जो जज्बात को अल्फाज में डाल सकते हैं। एक बार बारिश में टैक्सी खड़ी थी, हम दोनों अंदर बैठे मौसीकी सुन रहे थे, जब उन्होंने अचानक कहा, अहमद तुम मुझे क्यों इतने करीब लगते हो? मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं वो गहराई हूँ जो मुझे खींचती है। आपकी देखभाल, आपका सब्र, सब कुछ मेरे दिल को सुकून देता है। उस लम्हे हमारी निगाहें मिली, एक लंबी खामोशी जिसमें बहुत कुछ कहा गया। उन्होंने मेरा हाथ हल्के से थामा और बोले, तुम भी मेरे लिए वैसी ही हो जैसे कोई रोशनी जो अंधेरों में मिल गई हो। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, मगर ये एहसासात अभी नरम थे। एहतराम और मोहब्बत की इब्तिदा थी। अगले हफ्ते एक तातील के दिन उन्होंने मुझे अपने पुराने फ़ोटोज़ दिखाए, जवानी के दिनों के, जब वो मुख्तलिफ शहरों में घूमते थे। अब ये सब यादें तुम्हारे साथ शेयर करके लगता है जैसे नया सफ़ा खुल गया हो, उन्होंने कहा। मैंने एक फ़ोटो उठाकर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अंकल आप तब भी इतनी ही हैंडसम लगते थे। उनके चेहरे पर शर्म की लाली चढ़ आई, और तुम आज भी मुझे जवान बना देते हो। हम हंसते रहे, बातें करते रहे, कभी मुस्तकबिल के ख्वाब देखते, कभी हाल की खुशबू को महसूस करते। उनकी टैक्सी अब सिर्फ सवारी नहीं, हमारी ज़ाती जगह बन चुकी थी, जहां हम अपने दिल की बात कर सकते थे। एक रात देर से घर जाते हुए उन्होंने कहा, अहमद तुम्हारे बगैर अब दिन अधूरे लगते हैं। मैंने जवाब दिया, मेरे लिए भी यही है अंकल, आपने मेरे दिल में घर कर लिया है। उस तरह हमारा रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था। जज्बात की एक नरम लहर जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ सब्र, एहतराम और वो छोटे छोटे लम्हात जो मोहब्बत की बुनियाद बनते हैं। दिल जानता था कि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है और आगे बहुत कुछ है। वक्त के साथ हमारी कुर्बत एक नई शक्ल इख्तियार करती जा रही थी,
जैसे कोई फूल आहिस्ता आहिस्ता खिल रहा हो। एक दिन अली अंकल ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो एक पुराने दोस्त के घर जा रहे हैं जो पहाड़ों के करीब रहता है, अगर मैं चाहूँ तो साथ चल सकता हूँ। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी, क्योंकि उनके साथ बाहर निकलना हमेशा दिल को ताजगी बख्शता था। रास्ते में जब कार पहाड़ी सड़कों पर चढ़ रही थी तो उन्होंने मुझे अपने बचपन की यादें सुनाई, जब वो खेतों में दौड़ते थे और ख्वाब देखते थे कि एक दिन कोई उनका इंतज़ार करेगा। अहमद, तुमने वो इंतज़ार पूरा कर दिया है। उनकी आवाज़ में एक गहरा एहसास था जो मेरे सीने में उतर गया। मैंने उनकी तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, आपने भी मेरे अंदर वो जगह भर दी जो खाली थी। आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे दुनिया ज़्यादा सादा और खूबसूरत हो गई हो। वो मुस्कुराए, स्टीयरिंग थामे हुए, उनकी उंगलियां हल्के से मेरे हाथ को छूती रहीं, जैसे एक खामोश वादा हो। वहाँ पहुंचकर उनके दोस्त ने हमें खुशामदीद कहा। एक छोटा सा घर था जिसके गिर्द सब्ज़ा था। शाम डलते ही हम तीनों बैठकर पुरानी कहानियाँ सुनने लगे, मगर मेरी नज़र बार बार अली अंकल पर जाती थी। उनका वक़ार, उनकी आंखों की गहराई और वो तरीका जिससे वो सब कुछ सुनते थे मुझे मुतासिर करता था। रात को वापसी पर सितारों भरे आसमान तले उन्होंने कार रोक दी और कहा, ऐसे लम्हात में लगता है कि ज़िंदगी ने मुझे सब कुछ दे दिया है। मैंने उनका कंधा छूते हुए जवाब दिया, मेरे लिए भी यही है कि आपके करीब होने से सब कुछ मुकम्मल सा लगता है। उस लम्हे हवा में एक नई सी महक थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दिल की धड़कनें मिलती महसूस हुई। कोई बड़ा ऐलान नहीं, सिर्फ वो खामोशी जो सब कुछ कह रही थी। अगले दिनों में हमने एक दूसरे के शौक़ जानने शुरू कर दिए। मैंने इन्हें अपने पसंद की किताबें दी और वो मुझे अपने पुराने मौसीकी के मजमूए सुनाए। एक शाम जब हम एक छोटे से कैफ़े में बैठे तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी ज़िंदगी में तन्हाई ने उन्हें मजबूत बनाया, मगर अब वो मजबूती मेरे साथ बांटना चाहते हैं। तुम मेरे लिए नई उम्मीद हो। उनके अल्फाज ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, और आप मेरे लिए वो पनाह है जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। आपकी उम्र की पुख्तगी मुझे सुकून देती है। हमारी बातें गहरी होती जा रही थी। हर मुलाकात में एक नया एहसास जड़ पकड़ रहा था। एक हफ्ता बाद जब मेरे काम का दबाव बढ़ गया तो उन्होंने मुझे हौसला दिया, कहा कि वो मेरे साथ हैं, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। उनकी ये बात सुनकर मुझे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैंने उन्हें गले लगाते हुए कहा, आपके बगैर ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल था। उनकी आगोश में एक नई सी हरारत थी, एहतराम और मोहब्बत का मगलूब एहसास। उसके बाद हमने एक छोटी सी रूटीन बना ली, हर हफ्ते एक दिन अलग अलग जगह देखने का, जहां हम सिर्फ एक दूसरे के साथ होते। उनकी मौजूदगी में मुझे ताकत दी थी, उनकी निगाहें मुझे अपना एहसास करवाती। जब ये रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत हकीकत बनता जा रहा था, जहां दो दिल एक दूसरे को समझते, एक दूसरे की कदर करते और आगे बढ़ने का हौसला पाते थे। ये मोहब्बत सब्र और नरमी से बनी थी, जो हर दिन नई जहेत खोल देती थी। महीने गुजरते गए और हमारा रिश्ता फलता फूलता, जैसे कोई पौधा जो मुनासिब मिट्टी और पानी पाकर खूबसूरत दरख्त बन जाए। एक दिन अली अंकल ने मुझे एक पुरसुकून जगह पर बुलाया, जहाँ दरिया बह रहा था और हवा में ताजगी थी। हम वहाँ बैठे। उन्होंने मेरे हाथ में हाथ डाला और आहिस्ता से कहा, अहमद, ये सफ़र हमने मिलकर शुरू किया है। मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती बाप है। तुमने मुझ में वो खुश जिंदा कर दिया है जो बरसों से दबी हुई थी। मैंने उनकी आंखों में देखा जिनमें मोहब्बत की चमक थी और जवाब दिया, अंकल, आपने मुझे भी वो एहसास दिया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। आपकी पुख्तगी, आपका सब्र और आपकी देखभाल ने मेरे दिल को घर बना लिया है। मैं आपके साथ हर लम्हा गुजारना चाहता हूँ। उस दिन हमने एक दूसरे से वादा किया, ये कुर्बत हमेशा कायम रहेगी, कोई दबाव नहीं, सिर्फ बायमी एहतराम और प्यार। उसके बाद हमने अपनी ज़िंदगियों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया। अली अंकल ने अपनी टैक्सी की रूटीन को थोड़ा आसान कर लिया ताकि हम ज़्यादा वक्त साथ गुजार सकें। हमने छोटे छोटे सफ़र किए, पहाड़ों, दरियाओं के किनारे और कभी शहर की छतों पर बैठकर मुस्तकबिल की बातें की। उन्होंने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में छोटी खुशियों की कदर करनी चाहिए और मैंने इन्हें नई टेक्नोलॉजी और नौजवान नस्ल के ख्यालात से रोशनास कराया। हमारा रिश्ता एक दूसरे को मुकम्मल करता था, जहां उम्र का फ़र्क मोहब्बत को मज़ीद खूबसूरत बनाता था। एक शाम
जब गुरूब आफ्ताब की सुर्खी फैल रही थी तो उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो अहमद, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। मैंने उनके सीने से लगकर जवाब दिया, और आप मेरे लिए वो नूर हो जो मेरे रास्ते को रोशन करता है। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। वक्त आगे बढ़ा और हमारा बंधन मजबूत होता गया। हमने एक दूसरे के ख़ानदान से भी आहिस्ता आहिस्ता तारुफ करवाया, जहाँ सब ने हमारी खुशी देखकर कबूल किया। अली अंकल के चेहरे पर अब एक मुस्तकिल मुस्कुराहट रही थी और वो मेरे दिल में सुकून था जो पहले कभी नहीं था। हमने मिलकर एक छोटा सा घर संवारा जहाँ उनकी पुरानी यादें और नई उम्मीदों का इम्तिजाज था। रातें बातें करते गुजरती, दिन एक दूसरे के हमायत में। ज़िंदगी अब खूबसूरत लगती थी, जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। आखिरकार एक ख़ास दिन पर जब मौसम बहार की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, हमने एक दूसरे से कहा कि ये रिश्ता अब हमेशा का है। अली अंकल ने मुझे देखकर कहा, अहमद, तुमने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने मुझे वो मोहब्बत दी जो हर दिल चाहता है। हम दोनों ने एक दूसरे के गले लगाया, दिल धड़कते हुए मगर खुशी से भरपूर। ये मोहब्बत उम्र की दीवारों से बलातर थी। ये सिर्फ दो दिलों का मेल था जो एक दूसरे को पूरा करते थे। अब हम खुश व खुर्रम हैं, एक दूसरे का सहारा बने हुए ज़िंदगी के हर रंग को मिलकर देखते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं और मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी एक यादगार बन गई है जो बताती है कि सच्ची मोहब्बत सब्र, निगहदाश्त और बामी एहतराम से खुलती है, और जब दिल मिल जाए तो उम्र का कोई हिसाब नहीं रहता। हमारी खुशी अब लामुतनाई है, एक खूबसूरत, पुरअमन और मोहब्बत भरी ज़िंदगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प, जज्बाती और मुनफरिद उर्दू रोमांस स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल कहानी HD+ ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी राय अगली कहानी के लिए अपनी पसंद हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।